ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप देखा था, और इसी के साथ साथ लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप देखा था। ठीक है, सो इफ यू जस्ट गो ऑन द स्क्रीन यू कैन जस्ट सी। Okay, so this is the relationship between the linear velocity and angular velocity. So you can just say that a is equal v is equal to r into omega. This is the relationship between linear velocity and angular velocity. And also we have just proved that the tangential acceleration, that means at, is actually going to be radius into angular acceleration, that is alpha. Okay, yes. Then also we have seen the concept of period of revolution. What is period of revolution? The time taken by the particle performing uniform circular motion to complete one full revolution or one complete circle is called as the time period of revolution, and it is always denoted by capital T here. Yes, and it can be found out by the formula T is equal to 2 pi r upon v. Okay, this is the formula for time period of revolution. But if you just use the v is equal to r omega in this case, यहाँ पे अगर v is equal to r omega डाल देंगे इस v के बदले, तो हमको यहाँ पे r omega मिल जाएगा, जिसमें से r कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सिंपली t is equal to 2 pi by omega. ये अच्छी तरह से याद रख लो. So this is the expression for time period in terms of omega, no doubt. And also the time period is connected with the number of revolutions in this way. So time period becomes actually the time upon number of revolutions. So from this only we can just get the formula for number of revolutions is equal to the total time upon time period. Okay, ये भी हम इस तरह से लिख सकते हैं. तो इस तरह से, और yes, number of revolutions can be found out to be equal to the total time upon time period, or even time can also be written as the number of revolutions multiplied by time period. Because एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए t इतना टाइम लगता है, तो n रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए जरूर n टाइम्स ऑफ t इतना टाइम लगेगा, तो दैट विल बी द टोटल टाइम हियर इन दिस वे. ओके, तो ये हम समझ सकते हैं. और एट द सेम टाइम वी हैव सीन द कांसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन लास्ट लेक्चर. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन which is defined as the number of revolutions per unit time, and we can just write it as number of revolutions capital N upon time t becomes the value of small n, that is frequency. Okay, and from this only we can just get that this time period into frequency actually becomes equal to 1, and hence we get that this time period and frequency are just going to be the reciprocals of each other. तो ये दोनों जो एक दूसरे के reciprocals होते हैं, उनको इसमें से ओके. तो ये सब हमने देखा, और उसी की वजह से फ्रीक्वेंसी के भी हमको फॉर्मूले मिल जाते हैं. देखो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड. तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमको मिल जाएगा. इवन इस वाले का फॉर्मूला का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमको मिल जाएगा. और इसी के साथ साथ ओमेगा की भी दो फॉर्मूले हमको मिल जाते हैं. दिस इज वन फॉर्मूला फॉर ओमेगा, दैट इज 2 pi n, and this is another formula for omega, that is 2 pi by t. And also v के भी फॉर्मूले मिल जाते हैं. This is one formula for velocity v, and this is another one in terms of frequency here. तो ये सब हमने किया था. इवन इससे भी आगे जाके हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर 2 पाई इतना एंगल कवर होता है, और उसकी वजह से n रिवॉल्यूशंस के अंदर जरूर 2 पाई इंटू n इतना एंगल कवर होगा. ठीक है, और जैसे कि एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, and the number of revolutions made per unit time is actually called frequency, and therefore there is a relationship between omega and frequency also, and this is the relationship between them. And theta is equal to omega into t तो होता ही है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से हमको n जो है, ये कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू टाइम, ये भी हमको मिल जाता है. बट दिस विल हैपन ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, where alpha is going to be 0 or omega is going to be constant
और थीटा इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तभी उसमें ही ऐसा होता है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो इसमें देखा था कि अल्फा इज नॉट गोइंग टू बी अ जीरो। ओके, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज एनी नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, बट इट इज नॉन जीरो। एंड ओमेगा इज नॉट गोइंग टू बी अ कांस्टेंट हियर, ये ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता है। और थीटा जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब टाइम के साथ प्रोपोर्शन में नहीं होता है, बल्कि वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर सकता है, टाइम क्यूब के डिपेंड कर सकता है, या टाइम रेस टू 4 पे भी डिपेंड कर सकता है, बट ये चीज नहीं होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ऐसे केस में ये अभी आप इसमें और एक चीज हमको देखनी है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक स्पेशल कैटेगरी आता है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेंबर, the angular velocity, angular acceleration actually remains constant, and it may be positive or it may be negative. Depending upon that, we can have the circular motion to be accelerated one or uniformly deaccelerated one, no doubt. So but alpha is going to be constant. So when alpha is constant, we can just express the first, second, and third kinematical equations. So this is called as the first kinematical equation in rotational motion. This is going to be the second kinematical equation in rotational motion, and this one is going to be the third one. And also there is a fourth one, which is like this here. So अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कहाँ पे यूज होगा? जब हमको टाइम पता है, अल्फा पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है बॉडी का, तो वो उससे हमको ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सपोज हमको सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन कब यूज होगा, तो देखो अगर सपोज हमको अल्फा पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के निकालना है, तो उसके लिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन कब यूज होगा, तो देखो सपोज हमारे पास अल्फा है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास है, तो एक पर्टिकुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद वो बॉडी का कितना एंगुलर वेलोसिटी बनेगा, वो निकालने के लिए हमको सेकंड वाला थर्ड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। और फोर्थ जो है, सिमिलरली वी कैन जस्ट से दैट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी is always already there. Then if suppose we have the time also, then we can just find out the angular displacement in this case. तो मतलब ये चार चीजें जो है देखो, एक तो है थीटा, दूसरा है ओमेगा आई मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा है ओमेगा एफ मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, चौथा फिर है अल्फा, और पांचवा है टाइम। ये देखो ये पांच चीजें हैं, इन पांचों में से कोई भी तीन अगर है हमारे पास, तो चौथा हम निकाल सकते हैं आराम से। देख सकते हो ठीक से? ये देखो फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव द थीटा, ओमेगा एफ एंड ओमेगा आई एंड टी, ये चार चीजें अगर हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ? अल्फा सपोज नहीं है हमारे पास, तो जो नहीं है वो कौन से इक्वेशन में नहीं है वो चेक करो एक बार ठीक से। अगर देखेंगे ठीक से तो पता चलता है कि यहाँ पे फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फा नहीं है, ठीक है नहीं? इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्फा ना होने की वजह से हम यहाँ पे फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं आराम से। इफ सपोज वी हैव दिस अल्फा and omega I, omega t, sorry, omega f and theta is also always there, but time is not there. So we can just use this third kinematical equation, because the third kinematical equation doesn't contain time, right? And even if suppose we have this ये चार चीजें अगर है, थीटा अगर नहीं है, थीटा का कोई संबंध ही नहीं है, तो we can go for first kinematical equation immediately. और if we just suppose here थीटा अगर सपोज, हाँ सॉरी, सपोज ओमेगा एफ हमारे पास नहीं है, ये देखो ये इस तरह से ओमेगा एफ नहीं है, तो थीटा, ओमेगा है, टी और अल्फा, इन चारों के लिए हम देख सकते हैं कि ये सेकंड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो उसके लिए ही बना हुआ है। तो अकॉर्डिंगली मतलब क्या है ना कि कौन सा चीज नहीं है हमारे पास, तो वो यूज करके उसके उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो भी चाहिए वो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एंड विल गेट दिस थिंग हियर। हाँ, ओनली द थिंग इज दैट दिस ओमेगा आई मतलब
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर दिया ही नहीं तो उसमें थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं बना हुआ है जिसमें ये चारों में जो जिसमें ओमेगा आई ना हो। सबके अंदर ओमेगा आई तो है ही, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जरूरी है। यस। और हमने इसके आगे जाके ये भी देखा था कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस काइनेमेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी, फाइनल फ्रीक्वेंसी एंड द अल्फा अपॉन 2 पाई विच एक्ट्स एज अ एंगुलर एक्सेलरेशन ओनली। ठीक है, तो ये जो है ये अल्फा अपॉन 2 पाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने यहाँ पे इस सभी काइनेमेटिक इक्वेशंस के अंदर समझा था। तो ये अल्फा बाय 2 पाई को याद रखो, इट विल बी जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी का जो है फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन 2 पाई, उसको वैसे ही बोलेंगे, अल्फा बाय 2 पाई ही बोल सकते हो उसको, और क्या बोलेंगे। ठीक है, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जहां पे अल्फा यूज होता है तो वहां पे अल्फा बाय 2 पाई यूज होगा। अगर हम ये पूरा इक्वेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जैसे देखो ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है तो वो एक्चुअली हमारे पास क्या था, वो इस तरह से था, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी था। तो यहाँ पे ओमेगा एफ के बदले एन एफ आ गया, ओमेगा आई के बदले एन आई आ गया, टी के बदले टी ही है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फा की जगह किसने ले ली है, ये अल्फा बाई 2 पाई ने ले ली है। सेम वैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट और ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो थीटा की जगह को किसने ले ली, एन ने ले ली। ओमेगा आई के बदले कौन आया, एन आई आ गया। टी तो टी अपनी जगह पे है और टी यहाँ पे भी अपनी जगह पे है, लेकिन अल्फा के बदले कौन आ गया, तो ये देखो अल्फा के बदले यहाँ पे अल्फा बाई 2 पाई आ गया, जो इधर भी आया था। तो अल्फा बाई 2 पाई कैन बी सपोज टू बी द एक्सेलरेशन करेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को करेस्पॉन्डिंग करने वाला एक्सेलरेशन उसको हम बोल सकते हैं। इवन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, देखो अल्फा बाई 2 पाई इज प्लेइंग द सेम रोल हियर एज दैट ऑफ अल्फा in this kinematic equation because omega f square is equal to omega I square plus 2 अल्फा थीटा, ये हमारा इक्वेशन है। तो ओमेगा एफ स्क्वायर की जगह किसने ले ली, यहाँ पे एन एफ ने ले ली। ओमेगा आई की जगह किसने ले ली, एन आई ने ले ली। थीटा की जगह कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस ने ले लिए। तो यहाँ पे अल्फा की जगह जो है वो यहाँ पे अल्फा बाई 2 पाई लेने जा रहा है, तो वो हमको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, दिस अल्फा बाई 2 पाई plays the same role as that of alpha in all the kinematical equations when they are expressed in terms of frequencies. Okay, तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम अभी करेंगे फटाफट। यस, सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस नाउ। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। Read the question carefully. See, suppose that a fan starts from rest and undergoes an angular acceleration of 3 radian per second square. ओके, सो अभी इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर 1 its angular velocity after 4 seconds. Then again the second question is that find its angular displacement of the fan after 4 seconds. Okay, and also find angular velocity when its angular displacement is suppose 16 pi radian. Okay, so see here, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सोचो ठीक से, हाउ विल यू फाइंड इट आउट।
Yes. So if you just try to find it out, we can just say that first question here is that angular velocity after 4 seconds. तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि एक फैन जो है वो यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, और उसका जो एंगुलर इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है वो 0 दे रखा है, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज इट इज सेड दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ओके, सो ओमेगा आई हमारे पास है, ठीक है, और अल्फा कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया. चलो ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स कैसे ढूंढ के निकालेंगे. उसके लिए हमारे पास फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है. देखो क्या है फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, ओमेगा एफ is going to be equal to omega I plus alpha t. So here we can just use it here and get this 0 plus alpha कितना है देखो 3 and time कितना हुआ 4, तो इसलिए ये 3 into 4 बनता है 12. So here we can just get that this 12 radian per second is actually going to be the angular velocity after 4 seconds. That's it. So in the same way here we can just solve this second also. तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमको यहाँ पे देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो उसके लिए हमको सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा एक्चुअली, राइट. सो हियर वी कैन जस्ट गेट दैट थीटा is going to be actually equal to, yes, theta is equal to omega uh, omega I into t plus half alpha t square, correct है. So if we just use it here then we get this 0 into 4 plus 4 सेकंड के बाद का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के निकालना है ना हमको. Okay, so 0 into 4 plus half into alpha, where alpha is going to be 3, which is already given there, into t square, which is again 4 and उसका square. तो अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो 0 into 4 तो 0 ही बनता है, plus here it will be half of, yes, here it is 3 times of 4 16. Okay, 3 times of 16, where 2 can get cancelled with 16 and we'll be left with 8. So 8 threes are, it becomes 24, correct hai? So this is 24 radian will be actually the angular displacement after 4 seconds. Let us correct the question, 16 radian only. Okay, yes. So now go to the third question here. तो थर्ड क्वेश्चन के बाद अगर जाएंगे तो पता चलेगा एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 16 रेडियन. ओके, तो 16 रेडियन इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो उस समय का उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो ढूंढ के निकालने के लिए हम थर्ड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, जो बनता है ओमेगा आई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. ओके, तो हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 16 रेडियन के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे हमको थीटा के बदले 16 डालना होगा. ओके, तो यहाँ पे अगर हम डाल देंगे तो उसमें हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर, तो 0 है तो 0 का स्क्वायर बिकम 0 ओनली, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा विच इज गोइंग टू बी 3 and theta which is actually going to be 16 here in this case, so that we can just get that omega f square is going to be 2 3s are 6 and 16 6 are 96, correct hai? So here 96 will be there and omega f actually will be actually equal to root of 96 here, which can actually written as 4 root 6. That's it. So 4 root 6 radian per second. This is actually going to be the angular velocity of the particle when of the fan when its angular displacement becomes 16 radian per second radian actually. ठीक है, तो ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है उसका एप्लीकेशन हमको यहाँ पे करने को मिल रहा है. देखो ठीक से, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. So you can see, consider the question. There is a diagram given here in the question. Suppose this is a flywheel. And suppose there is a rope wound on it is flywheel.
Okay, so this is rope which is wound. Okay, so this is the situation in which a rope is wound on this flywheel, and this rope is just continued here, and suppose it supports a box. ठीक है, उसका दूसरा जो एंड पॉइंट है, तो वहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ये सपोज यहाँ पे एक बॉक्स लटक रहा है। Yes, okay, so this is the box suppose. Now suppose that this machine is started. जैसे हम यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें होगा क्या, देखो ठीक से कि यहाँ पे दिया हुआ ये है कि इस बॉक्स का जो वेट है, तो वो वेट दिया हुआ है जो कि सपोज 5 किलोग्राम है। ठीक है, 5 किलोग्राम। यस, एंड because of this flywheel will just start rotating. ये जो 5 किलोग्राम का जो फोर्स है और ग्रेविटी दिया हुआ है यहाँ पे सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये दिया हुआ है। अभी इसमें हमको मतलब ये पूरा जो सिचुएशन है, तो वो हम इसमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से। सपोज वी एक्सप्लेन इट, a flywheel is free to rotate about its axis okay, and a rope is wound on it, and supports weight 5 kilogram at the other end। ठीक है, दूसरे एंड पॉइंट पे ये 5 किलोग्राम का वेट वो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे ये वेट हम रिलीज करेंगे, तो तब से वी हैव टू फाइंड आउट नंबर 1, the angular velocity of the flywheel after 3 seconds। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है the frequency of the flywheel after 30 seconds। Suppose that the rope is sufficient। Okay, third is that number of rotations made by the flywheel in suppose 10 seconds। Okay, and suppose the fourth one, yes,
angular displacement of the flywheel when its angular velocity becomes pi रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ठीक से, सिचुएशन तो सबको समझ में आ गई है। सो अगर सपोज ये जो रोप है, तो वो रोप अगर इस तरह से यहाँ पे इस 5 किलोग्राम वेट के साथ अगर कनेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि इस 5 किलोग्राम वेट के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि एक्चुअली 5 × G, मतलब वेट के बराबर होगा वो। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस rope will be actually equal to m × G, where m is going to be the mass of this weight and it is multiplied by gravity here, which is actually equal to 5 × 10, which actually becomes 50 Newton in this case. Correct है? Yes. यहाँ पे yes. So चलो ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि फ्लाईव्हील का जो खुद का एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करेगा। we just assume that the ड्यू टू दिस फोर्स, ये जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, इस फोर्स की वजह से कैसे भी करके इस फ्लाईव्हील के अंदर एक एंगुलर या लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, इतना हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो सॉरी, yes, okay, suppose that due to this weight attached here, we assume that acceleration, linear acceleration of, forget about the mass of this flywheel here, ये सब भूल जाओ। यहाँ पे इतना ही याद रखो कि इस रोप के ऊपर ऐसा फोर्स लगाया जा रहा है जिसकी वजह से इस रोप का एक्सेलरेशन जो है, लीनियर एक्सेलरेशन, वो एक्चुअली सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन उसका हो रहा है। जबकि यहाँ पे जो रेडियस है, तो ये रेडियस एक्चुअली मतलब इस फ्लाईव्हील का जो रेडियस है वो मान लो कि एक 5 मीटर का रेडियस इसका है। ठीक है, 5 मीटर। तो उसमें हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे एक्चुअली वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा। और जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी कि एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो कि A = R अल्फा होता है। याद है ना सबको? तो इसको यूज करके हमको यहाँ पे मिलेगा A = R × अल्फा, जिसको यूज करके हमको मिलेगा अल्फा = A/R, where A is going to be the linear acceleration, which is actually going to be 10, and that is to be divided by the radius, which is going to be 5 in this case, so that we can just get it as 10/5. That means it is going to be 2 radian per second square. So this is actually going to be the angular acceleration of the flywheel here. चलो ठीक है, once we get the angular acceleration of the flywheel, we can just make use of this alpha in the kinematical equations now. Abhi, as it is said that the flywheels just starts from rest. Once again, we can just have that this omega naught is going to be, yeah, or omega I is going to be 0. Initial angular velocity is going to be 0. Okay. तो अगर हम ये यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाईव्हील आफ्टर 3 सेकेंड्स पूछा है। So let us try to find it out by using the first kinematic equation we can just have. So we can just have that omega f is equal to omega I plus alpha t. Here omega I is 0, no doubt, but alpha is going to be 2 and t is already given to be 3 here. So we can just multiply them together and get this 6 radian per second to be the omega f, which is going to be the answer of the first question here. Okay, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लाईव्हील आफ्टर 30 सेकेंड्स। यस, हाउ विल यू गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लाईव्हील आफ्टर 30 सेकेंड्स? अभी ये जो इक्वेशन हमारे पास है, तो वो तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए है। यही इक्वेशन हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो अगर हम वो करेंगे तो हमको मिलेगा इस तरह से कुछ, देखो। सो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ये बनेगा एक्चुअली NF, where NF is going to be the final frequency here, which is actually going to be Ni, that is initial frequency, plus alpha by 2 pi into t. करेक्ट है, यही हम यहाँ पे देख रहे थे।
तो ये इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा, तो जिसमें NF is to be found out, NF, and here Ni is 0 as usual because already omega I is going to be 0, so Ni must also be 0 बिल्कुल, and plus alpha by 2 pi, अल्फा कितना मिला है हमको, वो 2 मिला हुआ है ऑलरेडी, तो 2 upon 2 pi and that is multiplied with time which is 30 in this case here, so that the frequency of this will be actually equal to, yes, 2 cancel and will be actually 30 by pi left as it is, so 30 by pi and hertz will be the unit of this frequency, so pi का वैल्यू 3.14 होता है, भूलो मत, तो 30 को अगर pi से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली 30 को 3 से डिवाइड करने से तो वैसे 10 आता है, बट यहाँ पे 3.14 से डिवाइड करने की वजह से वो थोड़ा सा 9 पॉइंट या 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सो वी कैन जस्ट एक्सपेक्ट द आंसर टू बी 8 पॉइंट समथिंग हर्ट्ज, ओके, तो इन दिस वे वी हैव गॉट द frequency after 30 seconds, समझा ठीक से कैसे, तो in this way we can just find out the frequency after 30 seconds. Yes, now we can just get the next here, the third question in this case, क्या कह रहा है वो देखो ठीक से, so number of rotations made by the flywheel in 10 seconds, okay, तो 10 सेकेंड में ये फ्लाईव्हील ने कितने रोटेशंस किए हैं वो हमको ढूंढ के निकालना है, तो उसी के लिए हमको सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना होगा, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन जो कहता है, और वो भी फ्रीक्वेंसी वाला, तो ये नंबर ऑफ रोटेशंस will become equal to initial frequency into time t plus here it is half of, यहाँ पे अल्फा के बदले क्या आएगा, याद रखो अल्फा बाय 2 पाई into t square, that's it, so here we can just put this 0 here plus half of alpha by 2 pi, alpha is already 2 in this case and that is to be divided by 2 pi and that is multiplied with time square where time is given to be 10 here in this case, so 10 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करेंगे तो फाइनली हमको मिल जाएगा number of rotations which will actually be 0 plus here it is 2 cancel and we'll be left with this 100 upon 2 pi, that's it, ये चलो ऐसा करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल करेंगे चलेगा ना, तो ये 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 100 अपॉन 2 पाई विच एक्चुअली बिकम्स एक्चुअली 50 by pi, okay, तो 50 upon pi where pi is actually going to be 3.14, so 50 को भी अगर 3 से डिवाइड करते हो तो ऑलमोस्ट 16 पॉइंट समथिंग आ जाता है, बट यहाँ पे 3.14 होने की वजह से we can just expect it to be less than, slightly less than that, maybe like 15 point something like this, okay, तो इतने नंबर ऑफ रोटेशंस 15 कंप्लीट रोटेशंस वो करेगा, एक्स्ट्रा जो भी होंगे वो कर सकता है, ओके, and if you just focus on this fourth one here, fourth question, so angular displacement we have to find out when its angular velocity becomes pi radian per second, so angular velocity is to be found out and when the pi radian itna angle uska angular displacement is to be found out when angular velocity is given, तो अभी देखो यहाँ पे हमको थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, समझ सकते हो ठीक से, we'll have to use the third kinematic equation in this case, so वो भी ओमेगा वाला, तो it will be omega f square is equal to omega I square plus 2 alpha theta, that's it, so if you just try to use it, omega f is already given to be pi radian per second here, okay, तो यहाँ पे हम डाल देंगे pi, तो वो pi का स्क्वायर हो गया is equal to 0 का स्क्वायर as it is plus 2 times of alpha where alpha is given to be, यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसको फाइंड करके रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड, सो वी कैन जस्ट पुट इट हियर एंड गेट 2 एंड थीटा इज टू बी फाउंड आउट हियर इन दिस केस, राइट, सो थीटा हमको निकालना है, तो उसमें से हमको देखो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ थीटा and hence we can just get that theta is actually equal to pi square by 4 and that will be in radian actually, so this is going to be actually in the radian, so theta is obtained to be pi square by 4 radian in this case, तो इसमें से हमको angular displacement मिल गया आराम से, ठीक है, जबकि angular velocity जो उसका दिया हुआ है वो pi radian per second दिया हुआ है, okay, yes, so this in this way we can just use the these kinematic equations, तो ये तरीका है kinematic equations use करने का, I hope all of you are getting all these things, if not just immediately stop and just ask the doubts here only, yes, क्योंकि अभी नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो आपको करना है,
ठीक है, आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन. यस, सपोज अ टेबल फैन is rotating at 300 revolutions per minute for a long time. okay, काफी लंबे समय तक ये जो टेबल फैन है वो 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट इस रेट पे रोटेट कर रहा है, रोटेट ऑलरेडी हो रहा है. ओके, यस. तो फाइंड द टाइम टेकन and number of rotations made by the fan after it is switched on, sorry, switched off. And it is given that the angular acceleration of the fan is already given to be minus pi रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये दिया हुआ है. ओके, यस. सो जस्ट वर्क इट आउट, ट्राई इट ऑन योर ओन, जस्ट पुट द आंसर इन चैट बॉक्स. दो ही क्वेश्चंस देखो तुमको करनी है. एक तो टाइम टेकन निकालना है until it stops. मतलब अभी देखो टाइम टेकन एंड नंबर ऑफ रोटेशंस बिफोर इट स्टॉप्स, ये यहाँ पे रह गया शायद, लेकिन लेट अस yes, just do it fast. मतलब टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द फैन बिफोर स्टॉपिंग, मतलब स्टॉप होने से पहले, पूरी तरह से वो रुकने से पहले कितने नंबर ऑफ रोटेशंस करेगा, वो हमको ढूंढ के निकालना है. चलो ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे. देखो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि क्या क्या दिया हुआ है. देखो ठीक से, टेबल फैन इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. ये जो दिया हुआ है वो एक्चुअली इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ रहा है. इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली गिवन टू बी 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. अभी देखो रिवॉल्यूशंस पर मिनट का मतलब क्या होता है, आरपीएम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज जो है वो अगर 300 रिवॉल्यूशंस एक मिनट में कर रहा है तो वो तो फ्रीक्वेंसी हो गया. नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी. बट ये मिनट जो है, मिनट, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. तो उसके लिए हमको उसको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड यूनिट्स में. तो इसलिए यहाँ पे हमको रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए रिवॉल्यूशंस पर 60 सेकेंड्स यूज करना पड़ेगा. समझा ठीक से? क्या किया हमने यहाँ पे, इस मिनट को जो पर मिनट था तो मिनट को हमने 60 सेकेंड्स डाल दिया. उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा. और 60 से अगर इस 300 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5. तो इसका मतलब ये होगा कि 500 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ये हो गया. ठीक है, ये जो यहाँ पे रिवॉल्यूशंस पर मिनट था कि नहीं, तो ये रिवॉल्यूशंस पर मिनट के बदले ये रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में आ गया. और रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड का मतलब ही हर्ट्ज होता है, याद रखो ठीक से. तो इसलिए इसको हम 5 हर्ट्ज बोल सकते हैं. ठीक है, सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी फाउंड आउट टू बी 5 हर्ट्ज. ओके, इनिशियल फ्रीक्वेंसी चलो मिल गया, नो डाउट. अभी यहाँ पे फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना है, वैसे तो डायरेक्ट दिया नहीं है, लेकिन बिफोर स्टॉपिंग बोला है. अभी अगर वो स्टॉप होगा तो स्टॉप होने के बाद वो फ्रीक्वेंसी रिवॉल्व ही नहीं होगा ना. तो रिवॉल्व ना होने का मतलब क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी 0 बन जाएगा. तो इसका मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली गिवन टू बी 0 हर्ट्ज.
ओके एंड ओके, तो टाइम हमको निकालना है उसके लिए. तो टाइम कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन जस्ट have here. What is the first kinematic equation in terms of frequencies? So it is simply nf is equal to ni plus alpha by 2 pi into t. करेक्ट है? तो इसमें हमको ये t निकाल के दिखाना है. So let us try it here. So nf के बदले आ जाएगा 0. इधर ni के बदले हमने डालना होगा 5 हर्ट्ज. यस. एंड प्लस अल्फा. अल्फा के बदले क्या रखना है? ये देखो अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है. But just don't forget to take this minus sign along with alpha here. Okay, alpha is going to be negative in this case because it is going to stop ना. ये टेबल फैन जो है वो स्टॉप होने जा रहा है. तो स्टॉप होने का मतलब क्या है? यस, वेरी गुड कशिश. ओके, सो स्टॉप होने का मतलब ये है कि इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव. So that's why we'll have to consider this minus sign along with this pi here. So यहाँ पे आएगा minus pi upon 2 pi into time that is to be found out. Okay, so if we just try to simplify this further, we can just get this 0 is equal to 5 minus, यहाँ पे देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा simply t by 2. करेक्ट है? t by 2. So if we just take this t by 2 on that side, can just get this t by 2 is equal to 5, which will actually mean t is going to be equal to 10 seconds. That's it. तो इसका मतलब ये जो फैन है वो 10 सेकंड के अंदर रुक जाएगा. 10 सेकंड लगेंगे उसको कंप्लीट रुकने के लिए. चलो ठीक है. अभी दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे. जो दूसरा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि we want to find out the number of rotations also made by the fan before it stops. तो स्टॉप होने के पहले वो कितना नंबर ऑफ रोटेशंस परफॉर्म करेगा, वो कैसे ढूंढ के निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है तो वो हम यूज करेंगे, या थर्ड भी कर सकते हो. देखो, यस, वी कैन जस्ट यूज थर्ड ऑल्सो, नो डाउट, क्योंकि अल्फा तो ऑलरेडी है हमारे पास और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी 0 ही है. यस, वी कैन जस्ट यूज दिस थर्ड ऑल्सो एंड सेकंड ऑल्सो. बट सेकंड में क्या है ना कि ये टाइम हमको यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी इसमें ही निकाला है. अगर टाइम नहीं पूछते तो हमको डायरेक्ट एंगुलर नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने नहीं आता. सो बेटर वी कैन जस्ट यूज द थर्ड वन डायरेक्टली. तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पे. तो क्या है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन? वो भी फ्रीक्वेंसी वाला. तो नंबर ऑफ रोटेशंस सॉरी इज n. सो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन इज nf का स्क्वायर इज इक्वल टू ni का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा into alpha by 2 pi into n. Correct है? N is called as the number of rotations. Yes. So if you just simplify this further, then nf is going to be 0 square here. ये 0 बन गया. ni is given to be 5, right? तो यहाँ पे वो 5 हर्ट्ज हमको लेना है. तो ये डाल गया 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आने वाला है अल्फा 2 times of alpha by 2 pi. What is alpha? Just don't forget that it is negative. Okay, it is minus pi. So here it is going to be minus of pi, and that is to be divided by 2 pi in this case, and that is multiplied with n, which is to be found out. N is the number of rotations which we want to find. So here we can just get that 0 is equal to 25 plus और माइनस. ओके, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी इवन पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिंपली minus n. That's all. If we just take this n in that side, then we can get this n is equal to 25. That's it. So in this way, we can just get the number of rotations, that is 25 in this way. Okay. तो इस तरह से हम के number of rotations भी निकाल पा रहे हैं. Yes, very good Vivek also. Okay, but remember that this we can just find this out using this normal kinematic equations also. अगर तुमको चाहिए तो तुम ये नॉर्मल वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके भी ये निकाल सकते हो. देखो, not necessary that you have to use this kinematic equation in terms of frequency only. Instead of this, we can just go for omega f, which is equal to omega I plus alpha t. Okay, ये भी हम यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सिर्फ उसमें क्या है ना कि ओमेगा एफ हमको 0 लेना पड़ेगा और ओमेगा आई जो है वो निकाल के लेना पड़ेगा. देखो यहाँ पे अगर सपोज एन एफ अगर 5 हर्ट्ज है, एन आई अगर 5 हर्ट्ज है, तो ओमेगा आई कितना होगा बताओ? तो हम देख सकते हैं कि ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई एफ, राइट, और 2 पाई एन. तो ओमेगा आई कैन बी एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई इंटू एन आई. करेक्ट है? तो 2 पाई एन
10 आए, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 5, जो एक्चुअली बनेगा 10 इंटू पाई, राइट? So here you can just get this as 10 pi radian per second as a omega I, which can be replaced here. So you can just get this 10 pi in this case, and alpha के बदले माइनस पाई तो डालना ही है, तो ये माइनस पाई इंटू टाइम टी जो कि हमको निकालना है, तो ये पाई टी अगर इस तरफ डाल दिया तो वो हमको मिलेगा पाई इंटू टी is going to be equal to 10 pi, so that pi will get cancelled from both sides and will be simply left with time t equal to 10 seconds once again here. Okay, तो नॉर्मल मेथड से भी हमको वही आंसर मिल रहा है जो यहाँ पे हमको मिला था ऑलरेडी, राइट? और इवन ये जो इक्वेशन हमने यूज किया उसके बजाय हम हमारा नॉर्मल वाला थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, जो कहता है सिंपली ओमेगा एफ स्क्वायर, देखो ठीक से, सो इट विल बी ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर plus 2 alpha theta. This is our normal kinematical equation, third kinematical equation. So if we just use it here, then we can be able to get this omega f, which is to be replaced by 0, okay, which is equal to omega I, which is already found out to be 10 pi in this case here. So this is 10 pi and उसका स्क्वायर यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे अल्फा की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आएगा, करेक्ट है? सो -2 into अल्फा इज सिंपली पाई एंड थीटा इज गोइंग टू बी फाउंड आउट। तो इसको अगर हम ये 2 पाई थीटा को अगर उस तरफ लेके जाएंगे ना, तो हमको मिलेगा 2 पाई थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर 10 पाई का स्क्वायर क्या बनेगा एक्चुअली, इट विल बिकम 100 पाई, करेक्ट है? सो दिस इज गोइंग टू बी 100 एंड इवन पाई का भी स्क्वायर, सो 100 पाई स्क्वायर बन गया, करेक्ट है? यस, सो हियर पाई विल जस्ट गेट कैंसल्ड वंस एंड 2 विल जस्ट कैंसल with this 100 leaving behind 15 here. So finally we are going to get that theta is actually equal to 50 pi, correct है? तो थीटा मिल गया 50 पाई, बट ऑलरेडी वी नो दैट द नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, थीटा को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक रोटेशन के अंदर जो पार्टिकल है वो 2 पाई इतना एंगल कवर करता है, तो इसलिए थीटा को जब हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे तब जाके हमको नंबर ऑफ रोटेशंस मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे थीटा जो कि 50 पाई मिला हुआ है उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 पाई से, so that once again this pi gets cancelled and 2 just get cancelled with 50 leaving behind 25 as a final, which is going to be the number of rotations like this. Okay, तो number of rotations हमको मिल गया आराम से इस तरह से, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। और इवन इससे भी आगे जाके अगर तुमको चाहिए कि सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके अगर निकालना है तो वो भी कर सकते हो आराम से। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज n इज इक्वल टू थीटा, सॉरी, n इज इक्वल टू ni इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट है? ये इसमें है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए हम ये अगर सॉरी अल्फा बाई 2 पाई ना यहाँ पे, तो ये अल्फा बाई 2 पाई आएगा यहाँ पे, यस। सो एन आई इज गोइंग टू बी 5 हर्ट्ज, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 5 इंटू टाइम, जो कि हमको यहाँ पे रुकने का जो टाइम उसका ऑलरेडी मिला हुआ है 10 सेकेंड्स, तो वो भी डाल देंगे यहाँ पे 10, और यहाँ पे अल्फा की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा बीच में, और यहाँ पे हाफ kept as it is and here it is going to be alpha by 2 pi, so alpha is going to be pi and upon 2 pi just kept as it is and into time का स्क्वायर फिर से, तो जो कि टाइम तो 10 है, तो इस 10 का स्क्वायर बन जाएगा एक्चुअली 100, राइट? So we can just simplify this further and get this finally to be simply 5 into 10 which is going to be 50 here, तो ये बन गया 50 minus 5 pi cancel, 2 2s are 4 and 100 by 4 is 25, so 50 minus 25 is actually going to be 25, that is the number of rotations once again. Even we can just use the second kinematic equation, normal one, जो हमारा normal वाला second kinematic equation है वो भी यूज करेंगे, तो भी देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, करेक्ट है? ये इक्वेशन हमारे पास है, तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो थीटा हमको निकालना है, तो उसके लिए ओमेगा आई कितना है, ये देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है ओमेगा आई जो कि 10 पाई है, तो यहाँ पे डाल दिया 10 पाई और 10 पाई मल्टीप्लाइड विथ 10 दैट इज टाइम एंड माइनस हियर इट इज हाफ ऑफ अल्फा विच इज पाई इंटू टी स्क्वायर मतलब 100 फिर से, तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो इसमें से हमको मिलने वाला है थीटा का वैल्यू, जो कि देखो ठीक से 100 पाई अपॉन 100 पाई
minus here it is 50 pi, correct है 50 pi. So 100 pi minus 50 pi becomes 50 pi only. And once this theta becomes equal to 50 pi, in the same way as we have done it here, we can just find out the number of rotations by dividing this theta by 2 pi as well, so that we can get this number of rotations to be 25 in this way. Yes, okay. So this is what we have to do in this today's lecture. Okay. सो हमने आज के लेक्चर में काफी डिटेल में देखा कि किस तरह से काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज किए जाते हैं. तो लास्ट मतलब कल के लिए, यस, सो वी कैन जस्ट स्टॉप दिस लेक्चर हियर.